গ্রাউন্ড অ্যাটাকের জন্য যেমন বিভিন্ন স্থাপনা, বাংকার, সামরিক কনভয় ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী এরিয়াল বোম ব্যবহার করা হয়। এগুলো যেহেতু আকাশ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য, তাই বিমান বাহিনী শুধু এই বোমাগুলো जिस तरह से म्यांमार बांग्लादेश के साथ उलझने की कोशिश कर रहा है, या दूसरी तरफ भारत ने, राजनाथ सिंह ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, तो अगर बांग्लादेश के साथ किसी की भी जंग होती है तो इनके ठिकानों को तबाह करने के लिए बांग्लादेश के पास कितने मिसाइल हैं, कितने बम हैं, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। গ্রাউন্ড অ্যাটাকের জন্য যেমন বিভিন্ন স্থাপনা, বাংকার, সামরিক কনভয় ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী এরিয়াল বোম ব্যবহার করা হয়। এগুলো যেহেতু আকাশ থেকে নিক্ষেপণযোগ্য, তাই বিমান বাহিনী শুধু এই বোমাগুলো ব্যবহার করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শত্রু বিপক্ষে ব্যবহারের জন্য 4 ধরনের বোমা ব্যবহার করে, যার মধ্যে অন্যতম হল LS-6। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর F-7 সিরিজের যুদ্ধ বিমানে ব্যবহৃত প্রিসিশন গাইডেড বোম হল চীনের নির্মিত LS-6। ইন্টারনাল ও স্যাটেলাইট গাইডেন্সের পাশাপাশি লেজার গাইডেন্সের ব্যবস্থা সম্পন্ন এই বোমাগুলো 50 থেকে 500 কেজি পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের হয়ে থাকে। বিমান থেকে লঞ্চ করার পর গ্লাইডিং ফিনের সাহায্যে বোমগুলো সমসাময়িক অন্য বোমার চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তবে এসব বোমার নির্দিষ্ট কোনো রেঞ্জ নেই। এসব বোমার রেঞ্জ বিমানের লঞ্চিং অ্যালটিটিউডের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যত উঁচু থেকে লঞ্চ করা হবে এর রেঞ্জও তত বেশি হবে। ধারণা করা হয় সর্বোচ্চ 100+ কিলোমিটারও হতে পারে। বিমান বাহিনী চীনের থেকে গাইডেন্স কিট কিনে দেশে বোমাগুলো বানিয়ে থাকে। এরপর বিমান বাহিনীর অন্যতম বোমা হলো KB-500K টিভি গাইডেড বোম। KB-500K হলো ইলেকট্রো-অপটিক্যাল টিভি গাইডেড ফায়ার অ্যান্ড ফরগট বোম। প্রধানত ইয়াক 130 বিমানে KB-500K টিভি গাইডেড বোম ব্যবহার করা হলেও সম্প্রতি আপগ্রেডেড MiG-29 যুদ্ধ বিমানে রাশিয়ান KB-500 বোম সহ ফ্লাই করতে দেখা গেছে। গ্রাউন্ড অ্যাটাক এবং অ্যান্টিশিপ অ্যাটাকে এই বোমাগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। টিভি গাইডেন্স থাকায় ককপিট থেকে এই স্মার্ট বোমা দিক নির্দেশনা পেয়ে সঠিক টার্গেটে আঘাত আনতে সক্ষম। এই বোমাগুলোর ওজন 500 কেজি। MK-81 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত জেনারেল পারপাস বোম, যা যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টারে গ্রাউন্ড অ্যাটাক রোল পারফর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার নিকনেম ফায়ার ক্র্যাকার। উল্লেখ্য, এসব বোমার লাইসেন্স ভার্সন চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর F-7 সিরিজের যুদ্ধ বিমানে এসব বোমা ব্যবহার করা হয়। বিমান বাহিনীর ভান্ডারে 200টির মতো MK-81 জেনারেল পারপাস বোমা রয়েছে। টেবের 81 টেবের 81 হলো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তুরস্কের তৈরি 250 পাউন্ডের লেজার গাইডেড বোমা। বিমান বাহিনীর F-7 সিরিজের যুদ্ধ বিমানের জন্য 100+ টেবের লেজার গাইডেড বোমা কেনা হয়েছে। টেবের এই বোমগুলোকে ইনার্শিয়াল ন্যাভিগেশন সিস্টেম, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এবং সেমি অ্যাক্টিভ লেজার সিকার ব্যবহার করে প্রিসিশন স্মার্ট ওয়েপনে রূপান্তর করে। গ্রাউন্ড অ্যাটাকের জন্য বিশ্বব্যাপী লেজার গাইডেড বোম ব্যবহার করা হয়। তবে আমাদের বিমান বাহিনীর বিমান এসব বোমা নিক্ষেপে সক্ষম ছিল না, তাই আপগ্রেশনের আওতায় লেজার গাইডেন্স কিট ও বোমা যুক্ত করা হয়েছে, যা গ্রাউন্ড স্ট্রাইকে বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াবে। যাতে করে কিছুটা হলেও গ্রাউন্ড স্ট্রাইকে বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বেড়েছে। সামনের অংশে মাউন্ট করা একটি অ্যাডন সেলসিকার মুভিং টার্গেটের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট আঘাতের ক্ষমতা প্রদান করে। এতে লেজার গাইডেন্স স্পট সিকার লাগানো, যেটি ইনফ্রারেড অনুসরণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে অ্যাকুরেটলি হামলা চালাতে সক্ষম। রকেটসানের নির্মিত এই বোমাটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রাউন্ড অ্যাটাক ক্যাপাবিলিটি অনেক বৃদ্ধি করেছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। তো আজ এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাআল্লাহ। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि अगर बांग्लादेश के साथ भारत या फिर म्यांमार जंग करने की कोशिश करते हैं तो बांग्लादेश के पास ऐसे मिसाइल हैं जो इनके ठिकानों को, इनके बंकर को तबाह कर सकते हैं। तो ये बांग्लादेश की बड़ी ताकत है। बांग्लादेश ने इन बम के साथ साथ, इन मिसाइलों के साथ साथ पाकिस्तान से भी एंटी गाइडेड मिसाइल लेने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान से एंटी टैंक मिसाइल लेने का ऐलान कर रखा है, जो मिलने के बाद बांग्लादेश की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए बांग्लादेश के पास एक अच्छी ताकत होगी। आप देखें तो सेंट मार्टिन के ऊपर बार बार म्यांमार उलझने की कोशिश कर रहा है, बार बार हक जताने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन अगर बांग्लादेश ने पहल कर दी जंग की तो म्यांमार का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश जंग नहीं चाहता, लेकिन जैसे म्यांमार उकसा रहा है बांग्लादेश को जंग के लिए, तो अगर ये जंग होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार का होगा। चीन भी बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ है, और ऐसी कई इस्लामी ताकतें हैं जो बांग्लादेश का साथ देंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अब वीडियो के अंदर दिखाया गया कि इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी के बम हैं और इस कदर अच्छे पायलट भी, हमारी फिजाइया भी बहुत अच्छी है कि जो किसी भी दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है, पाकिस्तान की फिजाइया और बांग्लादेश की फिजाइया ने मिलकर जो इत्तेहाद किया है, और उस इत्तेहाद की बदौलत पाकिस्तान की फिजाइया भी बांग्लादेश की है और बांग्लादेश की फिजाइया तो पाकिस्तान की ऑटोमेटिकली है ही है। और अब यहाँ से जो मिसाइल दिए जा रहे हैं पाकिस्तान से, और फिर फ्रांस से मिसाइल लिए जा रहे हैं, और अमेरिका से मिसाइल जो लिए जा रहे हैं, वो बांग्लादेश की ताकत को दुगना चुगना कर देगी। और चाहे म्यांमार हो या भारत हो, दोनों के साथ अल्लाह ना करे एक ही वक्त में जंग करनी पड़ती है, तो बांग्लादेश के पास इस कदर ताकत होगी कि इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो चीन और पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, वो तो खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, चीन के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, ये बांग्लादेश को बहुत ज्यादा फायदा देगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, ये बहुत ही ज्यादा फिरासत वाले जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है, उनका विजन जो है बड़ा कमाल का विजन है। उनको पता था कि आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त ममालिक इकट्ठे किए, उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए जो बांग्लादेश को आने वाले वक्त के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली तरह की सपोर्ट हो या फिजिकल तौर पे। जैसे पाकिस्तान तो अब उनको मिसाइल भी दे रहा है, और साथ में उनको ये भी यकीन दहानी करवाई है कि अगर बांग्लादेश के ऊपर किसी की बुरी नजर पड़ती है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजेगा और वहां पर जाकर अपनी अफवाज के साथ जंग लड़ेगा। और जैसे अमेरिका है, वे अमेरिका की तो दोस्ती, आप अक्सर बात करते हैं कि ना उनकी दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। दुश्मनी तो पहले थी, लेकिन अब जो दोस्ती हो गई है ये भी सोने पे सुहागा हो गया है। और साथ में जो चीन है, चीन तो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ खड़ा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत और म्यांमार ये बस वैसे मुझे लगता है छोटी छोटी झड़पें करके ना बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश उलझे रहे इन्हीं साइडों के ऊपर। लेकिन इनको भी पता है कि अगर हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ जंग छेड़ दी, बांग्लादेश के साथ जंग शुरू कर दी, तो बांग्लादेश अकेला नहीं है, बांग्लादेश के पीछे पूरी कौमें खड़ी हैं, पूरे ममालिक खड़े हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, और बांग्लादेश के दोस्त हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। बल्कि अब तो बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, हमें दांतों की खानी पड़ेगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कोई जंग की सूरत इख्तियार करे। म्यांमार ऐसी शरारतें पहले भी करता रहा है, और जब बात आती है बांग्लादेश की फजाइया की, तो बांग्लादेश की फजाइया का कोई सानी नहीं है। दुनिया के बेहतरीन पायलट बांग्लादेश के पास हैं, जिन्होंने आलमी सतह पे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। और मैं हमेशा फैन रहा हूं बांग्लादेश की फजाइया का, बांग्लादेश के पायलट का। तो बांग्लादेश के साथ अगर म्यांमार उलझने की कोशिश करता है तो ये म्यांमार की आखिरी गलती होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब म्यांमार के अंदर अपनी उसकी फौज को भागना पड़ा तो वो भागकर बांग्लादेश में आकर पनाह ले रहे थे। जब बांग्लादेश के अंदर आए इनके फौजी तो उनको पकड़ लिया गया था। आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर क्यों फौजी आए थे, क्योंकि म्यांमार के अंदर अलैदा पसंद तंजीमों ने म्यांमार की फौज के ऊपर हमला कर दिया, और म्यांमार की फौज भागकर बांग्लादेश में पनाह लेने के लिए पहुंच चुकी थी। तो अब वही फौज इनके साथ उलझने की कोशिश कर रही है, वो नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ऐसी शरारतें हैं, ये जो शरारतें हैं ये पहले भी करता रहा म्यांमार और अब भी कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।